اسلامی تاریخ کے اعتبار سے یہ ربیع الاول کا بابرکت، باسعادت، طیب و طاہر، اکمل و اطہر، اطیب و اشرف مہینہ ہے، جس مہینہ میں رب کائنات مالک ارض و سماوات نے اس کائنات پر ایک بہت بڑا احسان عظیم کرتے ہوئے اپنے پیارے حبیب امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات ہستی میں مبعوث فرمایا، اور پھر قیامت تک آنے والی انسانیت کو ایک پیغام، ایک سبق، ایک میسج دیا کہ وہ کائنات ہستی میں بسنے والے انسانوں، یاد رکھنا تمہارے دل میں میرے محبوب کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اور یہ کہا کہ قل، میرے محبوب آپ ان کو فرما دیجئے، ان کو کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ۔ اگر تمہارے دل میں ان کان آباؤکم، تمہارے آباء و اجداد کی محبت، وَأَبْنَاؤُكُمْ، تمہاری اولادوں کی محبت، وَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بھائیوں کی محبت جن کو اپنا دست و بازو سمجھتے ہو، وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیویوں کی محبت جن کو تم اپنی رفیقہ حیات کہتے ہو، وَعَشِيرَتُكُمْ، تمہارے قوم قبیلے کی محبت جس کو برادریزم کہا جاتا ہے، تمہارے قوم قبیلے کی محبت، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہارا وہ مال، وہ تجارت کا مال جس کو تم کاروبار جس سے بڑی محبت کرتے ہو، تخشون کسادہا، اس تجارت کے اندر گھاٹا پڑنے سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہو، ومساکن ترضونہا، اور وہ گھر جن گھروں کے اندر تم رہائش پذیر ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، یہ ساری چیزیں جن کا بھی ذکر کیا گیا، فرمایا کہ فتربصوا، اللہ فرما رہے ہیں پھر تیار ہو جاؤ، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ پھر اللہ کا فیصلہ اور اللہ کا عذاب تم پر آ جائے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فتربصوا کا معنی کیا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ فتربصوا کا معنی ہے کہ رب العالمین کہتے ہیں پھر میرے ویڑیوں نکل جاؤ، پھر میرے ویڑیوں نکل جاؤ، میرے گھر سے نکل جاؤ، پھر میری زمین سے نکل جاؤ، پھر میری روئے زمین پر تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر تمہارے دل میں میرے محبوب کی محبت نہیں ہے، اپنے دل کو اسی وقت دیکھو کہ تمہارے دل کے اندر تمہارے آباء و اجداد کی، تمہاری اولادوں کی، تمہاری دکانوں کی، تمہارے گھر بار کی، تمہاری تجارت کی اور تمہاری بیویوں کی محبت اگر تمہارے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے زیادہ ہے تو پھر یاد رکھنا، پھر تیار ہو جاؤ حتی یاتی اللہ بامری، کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا۔ اللہ کے محبوب کی محبت ہمارے دل میں ہونا یہ ضروری چیز ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس چیز کا عملی سبق دکھایا۔ بدر کا میدان ذرا نظر اٹھا کر دیکھیے کہ میدان بدر کے اندر ایک طرف دشمن کی طرف سے آیا ہوا چچا کھڑا ہوا ہے تو مقابلے کے اندر بھتیجا نظر آ رہا ہے، ادھر ماموں کھڑا ہوا ہے
उधर भांजा खड़ा हुआ है, अगर इधर सगा बाप खड़ा है तो दूसरी तरफ सगा बेटा खड़ा हुआ नजर आता है। सारे आमने सामने खड़े हुए हैं। कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आए हुए हैं और कुछ उन दूसरे लोगों की तरफ से आए हुए हैं, और ये दोनों आमने सामने हैं। दुनिया वालों को उन्होंने दिखाया कि वो कायनात हस्ती में बसने वाले इंसानों, सारे रिश्ते नाते एक तरफ, अगर हम देखेंगे तो आज सिर्फ ये देखेंगे कि हमारे अल्लाह के महबूब की मोहब्बत हमारे दिल में कितनी है, और अल्लाह के महबूब की मोहब्बत के लिए अपनी गर्दनें तक कटवा देना हम अपने लिए मेराज समझेंगे और अपनी जिंदगी के लिए फख्र और एजाज समझेंगे। दुश्मन की तरफ से निकलने वाला पहलवान उतबा था, और उसने आकर कहा हल में मुबारिस, कोई है मेरे मुकाबले में आने वाला? और उन्हीं का बेटा हजरत अबू हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के महबूब नबी अलैहिस्सलाम से इजाजत मांग रहे हैं। कहा या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाकर अपने वालिद से दो दो हाथ कर लूं। मेरे महबूब ने फरमाया ना हुज़ैफा, मेरी तरफ से इजाजत नहीं है। कहा या रसूल अल्लाह, अगरचे वो मेरा वालिद है। देखने वालों ने कहा ओ हुज़ैफा, तेरी रगों में उतबा का खून दौड़ रहा है, इसके बावजूद तू उसके मुकाबले पे आ रहा है। उसने कहा जब मुआवजना अल्लाह के रसूल की मोहब्बत से आ जाए फिर बाप क्या होता है। मैं उस बाप की मोहब्बत को अपने जूते की नोक पे रखता हूं। मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को सबसे ज्यादा तरजीह देता हूं। ये थी मोहब्बत जो सहाबा के दिल में थी, ये थी मोहब्बत जो सहाबा के दिल में थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जब इस्लाम में दाखिल हुए, उस वक्त मक्के के सबसे बड़े ताजिर हैं। 4 दुकानें कपड़े की मक्के के अंदर मौजूद हैं। कपड़े का सबसे बड़ा व्यापारी मदीने मक्का मुकर्रमा का हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। और ये जब अल्लाह के महबूब नबी पर ईमान लाए, अपना सब कुछ हुजूर के कदमों पे कुर्बान कर दिया। यहां तक कि हिजरत की रात 40,000 दिरहम सिद्दीक अकबर के पास हैं, वो 40,000 दिरहम भी साथ लिए। कहा या रसूल अल्लाह, ये 40,000 दिरहम भी मैं आपके कदमों पे निछावर करने के लिए लेके जा रहा हूं। घर में कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ हुजूर के कदमों पे, हर चीज हुजूर के कदमों पे कुर्बान करने के लिए जा रहे हैं। सगी बेटी अस्मा को अबू जहल थप्पड़ मार रहा है, उसको भी बर्दाश्त कर रहे हैं कि औलाद की मोहब्बत भी या रसूल अल्लाह आपके कदमों पे कुर्बान। नबीना वालिद बूढ़ा है, उसको भी छोड़कर अपने अहले अयाल से कहा मेरे वालिद का तुम ख्याल रखना, लेकिन रसूलुल्लाह का साथ मैं नहीं छोड़ सकता। आका अलैहिस्सलाम के साथ जा रहे हैं। बताइए दिया कि या रसूल अल्लाह, हर चीज से ज्यादा मुझे आपसे मोहब्बत है, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। और ये मोहब्बत करके दिखाई और अमली तौर पे करके दिखाई। और जब हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह तआला अन्हु को उनका वालिद और चचा लेने के लिए आए, गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे, हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम थे, मेरे आका अलैहिस्सलाम के पास गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जब पता चला उनके वालिद को कि वो मक्के के अंदर फला आदमी के पास है, वो वहां से आए, कहा कि हमारे जितना माल कहेंगे हम देने के लिए तैयार हैं, हमारे बेटे को हमारे साथ रवाना कर दीजिए। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मैं माल और दौलत की तलब में नहीं हूं, अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ जाना चाहे तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा, इसको आप साथ ले जा सकते हैं, बेटे को साथ ले जा सकते हैं। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने जब इतनी बात कही, उन्होंने कहा ये कौन सी बात हुई कि बेटा बाप के साथ जाने से इनकारी हो जाए, ये तो मुमकिन ही नहीं है। बेटा बाप के साथ तो जरूर जाएगा, मां की मोहब्बत उसके दिल में जरूर जोश मारेगी। जब बेटे को बुलाया गया, हजरत ज़ैद को बुलाया गया और पूछा कि जी ज़ैद क्या चाहते हो, अल्लाह के महबूब का साथ चाहते हो या अपने वालिद के साथ जाना चाहते हो? फौरन वो कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं जानता हूं ये मेरा चचा है, मैं जानता हूं ये मेरा वालिद है, ये दोनों मुझे लेने के लिए आए हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह मैं आपका साथ छोड़कर जाने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं हूं। मैं सारी मोहब्बतों को कुर्बान करता हूं, जो प्यार, जो मोहब्बत, जो शफकत मुझे आपके दामने शफकत के अंदर मिली है, जो आपके दामन में मुझे जो मोहब्बत और प्यार मिला है, मैं और कहीं भी वो प्यार नहीं पा सकता। या रसूल अल्लाह, मैं हर चीज की जुदाईगी, मां की जुदाईगी बर्दाश्त कर सकता हूं, बाप की जुदाईगी बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन या रसूल अल्लाह आपकी जुदाईगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ये मोहब्बत सहाबा ने करके दिखाई है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर हो इसमें कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अगर आका की मोहब्बत
के अंदर कुछ खामी है तो फिर कोई चीज भी काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह के यहां अमाल को कबूल करवाने के लिए हुजूर की मोहब्बत शर्त अव्वल है। जब हुजूर की मोहब्बत हमारे दिल के अंदर होगी, हम उस मोहब्बत के अंदर पूरे के पूरे जचे तुले होंगे। आज हम दावा करते हैं, हमारी जुबानों पर दावा है कि हम हुजूर अलैहिस्सलाम के आशिक हैं। कहते हैं हम लोग मेरी रग में है नबी नबी, कहते हैं हम लोग मेरी रग में है नबी नबी, मगर पढ़ते हैं नमाज हफ्ते में कभी कभी, पढ़ते हैं हम नमाज हफ्ते में कभी कभी, और नबी का नाम सुनते ही झूम जाते हैं, नबी का नाम सुनते ही झूम जाते हैं, और नबी का हुक्म सुनते ही घूम जाते हैं। आज हमारी हालत तो ये है, हम अल्लाह के प्यारे नबी का अपने आप को आशिक कहलाते जरूर हैं, मगर हमारे पास उस मोहब्बत की, इश्क की दलील कोई नहीं है। मेरे भाइयों, दलील का होना जरूरी है कि मैं भी कहूं कि मैं आशिक रसूल हूं, तो मेरे पास दलील हो। मां अपने बेटे को आशिक रसूल बनाने के लिए मोहब्बत करे। मैं अगर हुजूर के आशिकों का जिक्र करूं और उस अम्मे अम्मारा का जिक्र न करूं जो मदीने से चलती हुई आई थी, जब उसको यह पता चला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद कर दिया गया, उस वक्त यह नाइंसाफी होगी अगर उसका जिक्र न किया जाए। उम्मे अम्मारा मदीने से चली, पता चला हुजूर को शहीद कर दिया गया, उसने कहा मेरे महबूब को शहीद कर दिया। जब रास्ते में आई, एक आदमी ने कहा अम्मा तेरा नाम उम्मे अम्मारा है? कहा हाँ मैं उम्मे अम्मारा हूं। कहा तेरा बेटा जो इस जंग में गया था ना वो शहीद हो गया? उसने कहा अच्छा मुझे हुजूर का बताओ, मेरे आका का क्या हाल है? दूसरा आदमी मिला, कहा तेरा भाई भी गया था ना इस जंग में? कहा हाँ। कहा वो भी शहीद हो गया। कहा मुझे हुजूर का बताओ, हुजूर का क्या हाल है? तीसरा आदमी मिला, कहा माँ तेरा खामिद भी इस जंग में गया था? कहा हाँ। कहा वो भी शहीद हो गया। कहा मुझे मेरे महबूब का बताओ क्या हाल है उनका? इसी को हफीज जलंधरी अपने अल्फाज में कहता है, उसने कहा चली थी एक ज़ईफा जुस्तजुए हाल करने को, चली थी एक ज़ईफा जुस्तजुए हाल करने को, किसी अच्छी सी खबर का बढ़कर इस्तिकबाल करने को, गए थे जंग में उसके बरादर शौहर भी, निछावर कर दिए उसने फर्जंदों के गौहर भी, मिले उन सब की शहादत के रस्ते में पयाम उसको सुनाते ही सुनाते, सुनाते ही सुनाते जा रहे थे सभी खासवाम उसको, मगर उसकी जुबान पर एक ही नामे नामी था, उसी का इसमें गिरामी था जो मजलूमों का हामी था। और भाई का न बेटे का न शौहर का ख्याल आया, रसूलुल्लाह कैसे हैं यही लब पे सवाल आया। लोगों ने कहा हुजूर जिंदा हैं, हुजूर सलामत हैं। कहने लगी जरा चल के दिखा दो मुझको, जरा चल के दिखा दो मुझको, और सूरत कमली वाले की मेरी इन तारीक आंखों को जरूरत है उजाले की। जब जाके देखा कि हुजूर सलामत है, हुजूर सलामत है, कहने लगी जब जाके देखा कि जलवा कदम मीरे तजल्ली है, पुकार की कि अब मेरी तसल्ली ही तसल्ली। हुजूर अलैहिस्सलाम का चेहरा अक़दस देखा, देखने के बाद कहने लगी कुल्लु मुसीबतिन बादा मुहम्मदिन जललू। या रसूल अल्लाह बड़े दुख थे, बड़े गम थे, बड़ी तकलीफें थी, जब आपका दीदार कर लिया, जब आपका रुख अक़दस देख लिया, मेरी सारी तकलीफें दूर हो गई, मेरे सारे गम दूर हो गए, मेरी सारी परेशानियां मिट गई। मैंने आपका रुख अक़दस देख लिया, मेरे दिल ने यह कह दिया कि हुजूर जिंदा है, हुजूर सलामत है। मेरे भाइयों, ये मोहब्बत उन्होंने अपनी औलादों को कुर्बान किया, और आज की मां अपने बेटे के चेहरे पर सुन्नत रसूल को देखना पसंद नहीं करती। उन्होंने अपने खामद को कुर्बान किया, अपने बेटे को कुर्बान किया, अपने भाई को कुर्बान किया। आज हम देखें कि वो भी आशिक थे, हम भी आशिक हैं, उनका इश्क कहां था, हमारा इश्क कहां है? हम अपने दावे के अंदर किस कदर सदाकत रखते हैं? हमें इश्क के दावे के अंदर सदाकत रखने के लिए अल्लाह के महबूब की सुन्नतों को अपनी जिंदगी में लागू करना होगा। जब हम हुजूर की सुन्नतों को अपनी जिंदगी में लागू करेंगे, हमारी एक एक अदा, हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह के महबूब नबी के रंग में रंगा हुआ होगा। याद रखिएगा, हमारी ये दुनिया की जिंदगी भी जन्नत का नमूना बन जाएगी, इसलिए कि हमने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों के ऊपर जब अपने नक्शे कदम पे चलकर हमने अगर कामयाबी को तलाश किया तो हम सीधा जन्नत का रास्ता पालेंगे। और अगर लोगों के रास्तों की तरफ चल के हम जन्नत का रास्ता तलाश करना चाहेंगे तो याद रखिएगा, इन ख्यालस्तो महालस्तो जुनू, ये कुछ भी नहीं होगा। हमें अगर कामयाबी चाहिए तो रसूलुल्लाह के कदमों में अल्लाह ने कामयाबी रखी है, और अल्लाह ने बता दिया है कि कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम, सारे रिश्ते नाते, औलाद हो गई, माँ बाप हो गए, और कारोबार हो गए, तुम्हारी बीवियों की मोहब्बत हो गई, इन सबको एक तरफ रखो, और रखने के बाद ये देखो मेरे दिल में मेरे महबूब की मोहब्बत कितनी है।
हमने आज अपने महबूब का आशिक, ये रबीउल अव्वल का पैगाम हम अपनी जिंदगी में सजा लें कि मेरे महबूब की मोहब्बत हमारे दिल में हर चीज से ज्यादा होनी चाहिए। अगर हम ये पैगाम अपनी जिंदगी में सजा लिया हमने, तो याद रखिएगा, तो फिर तो हमारे जिंदगी में रबीउल अव्वल के आने का फायदा हुआ। और अगर ये पैगाम भी हम ना ले सके रबीउल अव्वल से, तो फिर सिर्फ लाइटें लगाने से, सिर्फ इन चीजों की हम नमूदो नुमाइश के साथ हम जन्नत हासिल नहीं कर सकते। जन्नत को हासिल करने के लिए अल्लाह के प्यारे हबीब की इत्तिबा जरूरी है, अल्लाह के प्यारे हबीब के नक्शे कदम पे चलना जरूरी है। और जितना हम हुजूर के कदमों पे चलेंगे, जितना हम हुजूर के नक्शे कदम पे चलेंगे, यकीन जानिएगा हमारे लिए जन्नत का रास्ता आसान हो जाएगा। अल्लाह मुझे भी और आपको भी इन बातों को समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।